Good morning. Today we will deal with carbanion, in which we will discuss what is carbanion, how carbanion are formed, what are the important features of carbanion, and what are the factors which affect the stability of carbanion. कार्बनाइन क्या होते हैं? वे कार्बनिक आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश हो उसे कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन कहते हैं. Those organic ion in which carbon atom bears a negative charge is known as carbanion. कार्बनाइन अधिक क्रियाशील और अल्पजीवी होते हैं. They are reactive and short-lived. On the basis of negative charge present on type of carbon atom, they are broadly divided into three parts: प्राथमिक कार्बनाइन, primary कार्बनाइन. If the negative charge is present on primary carbon atom, then it is known as primary carbanion. If the negative charge is present on secondary carbanion, then it is known as secondary carbanion. If the negative charge is present on tertiary carbon atom, then it is known as tertiary carbanion. For example, we can say ethyl carbanion is primary carbanion, isopropyl carbanion is a secondary carbanion because negative charge is present on secondary carbon atom, or tertiary butyl carbanion is tertiary carbanion because negative charge is present on tertiary carbon atom. There are more examples of carbanion. This is vinyl carbanion, this is allyl carbanion, this is benzyl carbanion, and this is cyclopropanyl carbanion. How carbanions are formed? कार्बनायन कैसे बनते हैं? कार्बनायन सहसंयोजक बंध के विषमांश विखंडन से बनते हैं. Carbanions are formed by the heterolytic fission of an covalent bond. If we consider a CZ bond in an covalent bond, if the electronegativity of carbon atom is more than Z, then carbon will try to attract the bonded electrons towards it. So carbon atom will be a negative charge and Z will be a positive charge. अगर हम किसी सहसंयोजक आबंध में CZ बॉन्ड को कंसिडर करें, कार्बन की विद्युत ऋणता Z से अधिक है, तो कार्बन बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे कार्बन पर ऋणावेश और Z पर धनावेश आ जाएगा. अतः कार्बन परमाणु जिस पर ऋणावेश हो उसे हम कार्बनाइन कहते हैं, और ये सहसंयोजक बंध के विषमांशन से बनते हैं. उदाहरण के लिए हाइड्रोक्साइड आयन जब इस यौगिक के साथ में क्रिया करेगा, दैट इज एसिटाइलडिहाइड के साथ क्रिया करेगा, तो विषमांशन होगा और जल निष्कासित होकर के कार्बनाइन का निर्माण बनेगा. कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए किसी क्षारक की आवश्यकता होती है. उदाहरण के NH2 जब इथाइन के साथ क्रिया करता है तो विषमांशन होकर के अमोनिया निष्कासित हो जाता है और इथाइनाइल कार्ब एनाइन का निर्माण होता है. इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कार्बनाइन. कार्बनाइन के महत्वपूर्ण लक्षण. कार्बनाइन अत्यधिक अस्थायी होते हैं. दे आर हाईली अनस्टेबल. कार्बनाइन इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं और इनका अष्टक सदैव पूर्ण रहता है. दैट इज they are electron rich and their octet is always complete. In carbanion, carbon is in the state of sp3 hybridization. कार्बनाइन में कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होते हैं. कार्बनाइन की ज्यामिति पिरामिडीय होती है और कार्बनाइन प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं. दैट इज कार्बनाइन आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर. जब ज्यामिति की बात करें तो कार्बनाइन की ज्यामिति अमोनिया की भांति होती है. जिस प्रकार नाइट्रोजन पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसी प्रकार कार्बन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और यह ज्यामिति पिरामिडीय आकृति की होती है और दो कक्षकों के बीच में 109 डिग्री का कोण होता है. कार्बनाइन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, दैट इज
factors affecting the stability of carbanion are inductive effect, hyperconjugation effect, resonance and electronegativity. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बेनाइन का आपेक्षित स्थायित्व, that is relative stability of 1 degree, 2 degree and 3 degree carbanion can be explained on the basis of inductive effect, that is methyl carbanion, ethyl carbanion, that is 1 degree carbanion, isopropyl carbanion, 2 degree carbanion, this is tertiary butyl carbanion, 3 degree carbanion. Here in case of tertiary butyl carbanion there are 1, 2 and 3 CH3 groups. In case of isopropyl carbanion there are 2 CH3 groups and here there is 1 CH3 group. More the alkyl group, they will show plus I effect, so they will donate electron, and due to donation of electron the negative charge magnitude on carbon atom increases in case of tertiary butyl atom, and here it is lesser, here it is more lesser and here it is least. So we can say कि जो जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा त्यों त्यों स्थायित्व बढ़ेगा। अतः हम कह सकते हैं मिथाइल कार्बेनाइन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला समूह नहीं जुड़ा हुआ है इसके साथ। यहाँ पर एक CH3, यहाँ 2 CH3, यहाँ 3 CH3 के कारण, प्लस आई इफेक्ट के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसलिए कम स्थायी। यहाँ पर ये सबसे अधिक स्थायी है। सेकंड फैक्टर जो कि कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल बेंजेलिक कार्बेनाइन की जब हम स्टडी करते हैं तो बेंजेलिक कार्बेनाइन पर ये जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग पर, पूरी बेंजीन रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। देखिए जैसे यहाँ है नेगेटिव चार्ज, यहाँ है नेगेटिव चार्ज और यहाँ है नेगेटिव चार्ज। सो हम कह सकते हैं कि बेंजाइल कार्बेनाइन 3 अनुनादी संरचनाएं बनाता है, जबकि एलिल कार्बेनाइन में केवल 1 अनुनादी संरचना बनती है। तो जब हम बेंजिलिक तथा एलिलिक कार्बेनाइन का आपेक्षित स्थायित्व ज्ञात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो जो किसी कार्बेनाइन में अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ेगी त्यों त्यों कार्बेनाइन का स्थायित्व बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं बेंजिलिक कार्बेनाइन में 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, जबकि एलाइलिक कार्बेनाइन में 1 अनुनादी संरचना है। अतः हम कह सकते हैं बेंजिलिक कार्बेनाइन एलिलिक कार्बेनाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। बेंजिलिक कार्बेनाइन एवं उसके प्रतिस्थापियों का अपेक्षित स्थायित्व, जैसे संरचना 1 में दिया गया, ये बेंजिलिक कार्बेनाइन है। यहाँ पर बेंजिलिक कार्बेनाइन का हाइड्रोजन अगर NO2 से प्रतिस्थापित हो जाए, जैसा कि संरचना 2 में दर्शाया गया है, और संरचना 3 में बेंजिलिक कार्बेनाइन का हाइड्रोजन OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, और संरचना 4 में बेंजिलिक कार्बेनाइन का हाइड्रोजन CH3 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। अब हम इन चारों यौगिकों का आपेक्षित स्थायित्व ज्ञात करते हैं। तो संरचना 2 में NO2 समूह -I प्रभाव दर्शाता है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। अतः इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, जबकि संरचना 3 में OH समूह के +R प्रभाव के कारण यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। संरचना 4 में भी CH3H इफेक्ट, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके कारण इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जितना अधिक नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वे
कम स्थायी होगा। तो अब इन चारों संरचनाओं में संरचना 2 में नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम हो रहा है, क्योंकि NO2 माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है, अतः सबसे अधिक स्थायी ये है। बेंजिलिक कार्बेनाइन में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो ना तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा न घटेगा, अतः इससे ये कम स्थायी है। जबकि संरचना 4 में हम कह सकते हैं प्लस, दैट इज H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और संरचना 3 में प्लस R इफेक्ट। तो प्लस R इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है, इसका मतलब प्लस R का इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्लस संरचना 4 संरचना 3 से अधिक स्थायी है, अतः स्थायित्व का क्रम संरचना 2 अधिक स्थायी होगी 1 से, 1 अधिक स्थायी होगी 4 से, और 4 अधिक स्थायी होगी 3 से। इज इट क्लियर? अगला फैक्टर जो कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम इथिनाइल कार्बेनाइन की बात करें और इथाइनाइल कार्बेनाइन की बात करें, इथाइनाइल कार्बेनाइन में यहाँ कार्बन sp संकरण अवस्था में है, और इथिनाइल कार्बन में या कार्बन sp2 संकरण अवस्था में है। अगर कार्बेनाइन में sp संकरित अवस्था पाई गई तो S कैरेक्टर इसमें 50% होगा और P कैरेक्टर भी 50% होगा। जिस कार्बेनाइन में के कार्बन में S कैरेक्टर जितना अधिक होगा वह कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और स्थायित्व बढ़ जाएगा। जबकि इथिनाइल कार्बेनाइन में कार्बन sp2 संकरित अवस्था में, यहाँ S कैरेक्टर 33.33% और P कैरेक्टर 66.66% है। तो S कैरेक्टर इथाइनाइल कार्बन की अपेक्षा यहाँ कम हो जाता है। S कैरेक्टर कम होने के कारण कार्बन कम विद्युत ऋणी होगा, जिससे यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक नहीं खींच पाएगा, अतः स्थायित्व कम होगा। तो जब हम इन दोनों कार्बेनाइन का कंपैरिजन करते हैं तो इथाइनाइल कार्बेनाइन का स्थायित्व इथिनाइल कार्बेनाइन से अधिक होगा। एरोमेटिक कार्बेनाइन तथा बेंजिलिक कार्बेनाइन का आपेक्षित स्थायित्व, यहाँ ये साइक्लोप्रोपिनाइन कार्बेनाइन है, और ये दोनों कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज है, दोनों में अनुनाद हो रहा है। नेगेटिव आवेश अगर नहीं होगा इसमें तो अनुनाद नहीं होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसमें अनुनाद हो रहा है। जबकि बेंजिलिक कार्बेनाइन में बेंजीन के कारण अनुनाद तो होगा, नेगेटिव चार्ज जो है ये अनुनाद का हिस्सा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं बेंजिलिक कार्बेनाइन में अनुनाद कम प्रभावी होगा एज कंपैरिजन टू एरोमेटिक कार्बेनाइन। अतः हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक कार्बेनाइन बेंजिलिक कार्बेनाइन की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अब हम सभी कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि एरोमेटिक कार्बेनाइन सबसे अधिक स्थायी, फिर बेंजिलिक कार्बेनाइन, एलिलिक कार्बेनाइन, इथाइनाइल कार्बेनाइन, इथिनाइल कार्बेनाइन, मिथाइल कार्बेनाइन, इथाइल कार्बेनाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। सबसे अधिक एरोमेटिक कार्बेनाइन होता है और सबसे कम टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन स्थायी होता है। तो ये था कार्बेनाइन किसे कहते हैं, कार्बेनाइन किस प्रकार बनते हैं, कार्बेनाइन के महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं, और कार्बेनाइन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक और विभिन्न कार्बेनाइन का आपेक्षित स्थायित्व का अध्ययन।
धन्यवाद।